پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ہاتھ میں 5ویں کلاس کی دینیات میں سے دروس الاسلام اور دروس الاسلام کا پہلا حصہ کتاب العقائد ہے، اور کتاب العقائد کا چوتھا سبق ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اور چوتھے سبق کا نام ہے الدرس الرابع، سبق نمبر 4، رؤیت اللہ تعالی۔ رؤیت اللہ تعالی، اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنا۔ کہ جب ہم کسی حیوان یعنی جاندار چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں روح کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ روح ہے، اور روح کو اس کے مخصوص علامتوں سے معرفت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن روح کو کبھی ہم نے آنکھوں سے نہ دیکھا، اسی طرح بجلی کو بھی اس کے مختلف اثرات سے معلوم کرتے ہیں۔ مختلف جو اس کے اثرات ہیں، نشانیاں ہیں، اس سے ہم معلوم کرتے، مگر بجلی کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں۔ لیکن بجلی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے نہ آئی، بعینہ، یعنی اسی طرح بعینہ، ویسے ہی ہم زمینوں اور آسمانوں میں بکھری ہوئی، زمینوں آسمانوں میں پھیلی ہوئی آیات بیانات، یعنی روشن اور کھلی دلیلیں، چیزیں جو ہے ان سے رب تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ہماری چشمان سر نے کبھی اس کی زیارت نہ کی ہے، چشمان سر نے کبھی بھی اس کی زیارت نہ کی، اور نہ ہی کس کی زیارت؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت، یعنی ہمارے سر کی آنکھوں نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کی، اور نہ ہی اس دنیا میں اسے کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نے نہ دیکھا۔ یقین کیجئے کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی خصوصیت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ آپ نے شب معراج میں بلا کسی شک و ریب کے، بلا کسی شک و شبہ کے، اللہ رب العزت کا ظاہری آنکھوں سے، ماتھے کی ظاہری آنکھوں سے دیدار فرمایا، اور سارے مومنین بغیر کیفیت و جہد کے، یعنی بغیر طرف و طرح کے جنت میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیدار کریں گے، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات و صفات جملہ مخلوقات سے ممتاز ہے، اعلیٰ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اور نہ اس کی ہماری طرح آنکھیں، ہاتھ پیر ہیں، اور نہ ہی وہ جہت و مکان سے متصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہماری طرح آنکھ، ہاتھ، پیر نہیں ہے، اور نہیں جہت، طرف، کونا جو ہے سے وہ اس کی ذات متصف ہے۔ وہ اس وقت سے ہے جب نہ جہت تھی، اور نہ مکان تھا، اور نہ وقت تھا، یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پیارے بچوں، اب اس سبق 5 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، کسی جاندار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کس چیز کا یقین ہوتا ہے؟ کسی جاندار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کس چیز کا یقین ہوتا ہے؟ کسی بھی جاندار کو، حیوان کو ہم دیکھتے ہیں تو پیارے بچوں اس کا جواب ہے ہمیں روح کا یقین ہوتا ہے۔ تو ہمیں روح کا یقین ہوتا ہے، کس کا؟ روح کا یقین ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2،
किस लिए हम बिजली के वजूद के कायल होते हैं, यानी किस तरह, किस लिए हम बिजली के वजूद के कायल होते हैं कि बिजली का वजूद है। हम बिजली को आंखों से तो नहीं देखते मगर बिजली के वजूद का हम किस तरीके से कहते हैं कि बिजली के असरात से हम उसके वजूद को मान लेते हैं। बिजली के, इसी तरह बिजली को उसके मुख्तलिफ असरात से हम जो है कि उसके वजूद के कायल हैं, इसके मुख्तलिफ असरात से उसके वजूद के कायल हैं, मालूम कर लेते हैं उसके वजूद के कायल हैं। सवाल नंबर 3, किन चीज़ों से हम रब ताला की मार्फत हासिल करते हैं, किन चीज़ों से हम रब तबारक व ताला की मार्फत हासिल करते हैं। तो कहते हैं कि रब तबारक जमीनों और आसमानों में, तीसरे सवाल का जवाब, जमीनों और आसमानों में बिखरी हुई आयात बयानात से रब ताला पर हम ईमान लाते हैं। रब पर ईमान लाना यही रब की मार्फत हासिल करना। हम जमीनों और आसमानों में बिखरी हुई आयात बयानात से रब ताला पर ईमान लाते हैं, रब ताला की मार्फत हासिल कर लेते हैं। सवाल नंबर 4, इसका कि दुनिया में रब ताला को किसने देखा है और कब देखा है। इसका जवाब है, चौथे सवाल का जवाब, मुस्तफ़ा जान रहमत रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और ने न देखा। तो ये सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुनिया में देखा है और शबे मेराज के दिन देखा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुनिया में देखा है और शबे मेराज के दिन देखा है। सवाल नंबर 5, मोमिनीन अल्लाह ताला की रूह से मुराद देखना, अल्लाह ताला की रूह से शर्फयाब होंगे कहाँ और कैसे। तो सारे मोमिनीन बगैर कैफियत और जहद के जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार से मुशर्रफ होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेंगे। प्यारे बच्चों, अब जो है खाली जगह पूर करना। तो खाली जगह, तो हम रूह को उसकी मखसूस अलामतों से पहचानते हैं। हम रूह को किस चीज़ से पहचानते हैं? उसकी मुख्तलिफ अलामतों से पहचानते हैं। यहाँ ये हर भरना खाली जगह में, हम रूह को उसकी मखसूस अलामतों से पहचानते हैं, उसकी ख़ास अलामतों से पहचानते हैं। और नंबर 2, रब ताला की ज़ात, और इसके आगे बढ़ना रब ताला की ज़ात और सिफ़ात, लफ्ज़ सिफ़ात बढ़ना है। और जुमला के बाद मखलूक़ात से मुमताज़ है, मखलूक़ात भरना है। यहाँ सिफ़ात, रब ताला की ज़ात के बाद सिफ़ात और जुमला के बाद मखलूक़ात भरना है। और नंबर 3, उसकी कोई मिसाल नहीं, यहाँ भरना उसकी कोई मिसाल नहीं। नंबर 4, और ना ही वो जेहत व मकान से मुत्तसिफ है, यहाँ भरना है जेहत व मकान से, और ना ही तो है जेहत व मकान से मुत्तसिफ है। और नंबर 5, वो वक्त से है जब ना जेहत थी और ना मकान, यहाँ लफ्ज़ जेहत भरना है और इसमें लफ्ज़ मकान भरना है। अब आगे चलिए अल्फाज के माने, ये अल्फाज हैं नीचे दिए हुए, इनके माने। पहला लफ्ज़ है हैवानुन। हैवानुन जानदार को कहते हैं, जानदार, जान वाली चीज़, जैसे इंसान, हैवान जो है कि जो मखलूक़ात, इंसान, हैवान जो है जानदार, जो भी जान वाली मखलूक़ात है, परिंदे चरिंदे, इंसान, मखलूक़ात, गधे, कुत्ते, बिल्ले, सब ये हैवानात हैं। हैवान की जमा हैवानुन है। मखसूस ख़ास, मखसूस कहते हैं ख़ास। और मारिफतुन यानी पहचान, लफ्ज़ हैवान लफ्ज़ के जानदार माना है और मखसूस का माना है ख़ास, और मारिफतुन का माना है पहचानना। असरातुन का माना है जो है कि उसके असरात, उसके जो है कि उसका असर ज़ाहिर होना, उसके असर ज़ाहिर होना। और आगे लफ्ज़ है बिआइनी। बिआइनी का माना है उसी तरह, इसी तरह।
आयातुन का माना है रोशन और बयानातुन खुली, आयातुन और बयानातुन का माना खुली रोशन। और चश्मान माने आंखें, चश्मान कहते हैं आंखों को। रूह फिदा जो है कि जान कुर्बान करना, रूह फिदा का माना है जान ऊपर जान कुर्बान करना। और रैब का माना है शक, और कैफियत का माना है जो है, कैफियत का माना है तरह तरफ, कैफियत का माना हाल, कैफियत कहते। और जेहद का माना है तरफ, कैफियत का माना हाल और जेहद का माना तरफ। मुमताज का माना है आला, मुमताज का माना है आला। और मुत्तसिफ उससे जो है कि खास होना, मुत्तसिफ खास होना। प्यारे बच्चों, ये सबक हुआ आज का, इसको सही तरीके से याद करके लाना।